ناظرین آداب، BTV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے INS وکرم آدتیہ کا لیا جائزہ، فوجی اڈے پر کیا گیا شاہانہ استقبال۔ وزیر دفاع ارون جیٹلی آج پہنچیں گے جموں کشمیر، سیکورٹی صورتحال پر مسلح افواج سے کریں گے تبادلہ خیال۔ مظفر نگر متاثرین کو 3 دنوں کے اندر کیمپس خالی کرنے کا الٹیمیٹم، شاملی کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے احکامات کیے جاری۔ پریتی زنٹا نے اپنے سابق بوائے فرینڈ پر عائد کیا ہراسانی کا الزام، پولیس میں درج کرائی شکایت۔ ممبئی کے کامپاکولا سوسائٹی کے مکینوں کے لیے راحت کی خبر، ریاستی حکومت نے اٹارنی جنرل سے رعایت طلب کرنے کا کیا اعلان۔ اور فیفا عالمی کپ کے تاریخی مقابلے میں نیدرلینڈ نے دفاعی چیمپئن اسپین کو 5-1 سے دی شکست، چلی اور میکسیکو نے بھی کی جیت سے شروعات۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گوا کے ساحل پر جنگی بحری بیڑا INS وکرم آدتیہ کا جائزہ لیا۔ فوجی اڈے پر مودی کا شایان شان استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بحری بیڑے کے کرو سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے MiG-29 کے طیارے کی بھی سواری کی۔ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد مودی کا یہ پہلا دفاعی دورہ ہے۔ بحریہ نے وزیر اعظم مودی کی آمد کو اعزاز سے تعبیر کیا ہے۔ اس विमान वाहक पोत से 34 वायुयान, जिनमें MiG-29 के लड़ाकू विमान, सी हैरियर, वीपटॉल विमान, हवाई निगरानी रडार से लैस कामोर 31 हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी अभियानों के लिए मशहूर कामोर 28 हेलीकॉप्टर एवं सीकिंग और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, संचालित किए जाते हैं। इस युद्धपोत का नाम विक्रमादित्य 2 शब्द मिश्रण से बना है। विक्रम अर्थात वीर और आदित्य अर्थात सूर्य, जिसका अर्थ बनता है सूर्य समान। विक्रमादित्य का पोत चिन्ह इसे युद्ध पोत के सामरिक महत्व को दर्शाते हैं। चिन्ह के बीच में सागर में उदय होता हुआ सूर्य भारत राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। तो चारों दिशाओं में उड़ते हुए हंस रूपी तीर इसके विमानों की चहुं दिशाओं में लंबी दूरी तक मारक क्षमता दर्शाते हैं। धनुष एवं उसकी प्रत्यंचा एक शक्तिशाली युद्धपोत एवं उसके सदैव सजग दल का प्रतीक है। As we say today, we're proud and privileged to be operating 2 such mighty carriers. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر بھوٹان روانہ ہونے والے ہیں۔ وزیر اعظم کے اس دورے کا مقصد اپنے ہمسایہ ملک بھوٹان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ مودی کا بھوٹان دورہ سارک ممالک کے سربراہان کو حلف برداری تقریب میں مدعو کرنے کے تناظر میں کافی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ ایک طرف چین بھوٹان سے اپنے روابط بڑھانے کی کوشش میں ہے، وہیں ہندوستان بھی بھوٹان سے اپنے دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ 2 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی بھوٹان کے شہنشاہ جگمے قیصر نامگیال وانگچک اور اپنے بھوٹانی ہم منصب شیرنگ توبگے سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے میں
वजीर खारजा सुषमा स्वराज, खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह और कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल भी वजीर आजम के हमरा होंगे। नरेंद्र मोदी भूटान की कौमी असम्बली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। Bhutan is the first foreign country that Prime Minister is visiting after being sworn in. Our relations with Bhutan are unique and especially warm. Our historical and cultural linkages make us natural friends and partners. अब एक नजर डालते हैं भूटान की इक्तिसादी तरक्की में हिंदुस्तान के रोल पर। हिंदुस्तान की जानिब से भूटान को साल 2013-18 के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सयाहत और फ़रोग़ इंसानी वसाइल के लिए 4500 करोड़ रुपए फराहम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने भूटान में हाइड्रो पावर, सीमेंट और IT शोबे के 16 प्रोजेक्टों में सरमायाकारी की है और दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा है। स्कूल, लाइब्रेरीज, तलबा के हॉस्टल का इंतज़ाम, वेटरनरी अस्पतालों का क़याम, आबपाशी चैनल्स, पीने के पानी की स्कीमें और कम्युनिटी मराकज़ का क़याम जैसे छोटे प्रोजेक्टों में भी हिंदुस्तान अपने हमसाया मुल्क का ताउन कर रहा है। हाइड्रो पावर के शोबे में भी हिंदुस्तान का भूटान को अहम ताउन रहा है। वहां अभी तक 1416 मेगावाट के 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स HEPs तैयार किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 3 HEPs ज़ेर तामीर हैं और तवक्का है कि तीनों प्रोजेक्ट्स साल 2017-18 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा दोनों मुमालिक ने 2120 मेगावाट के मजीद 4 JV मॉडल के HEPs की तैयारी के लिए फ्रेम वर्क मुआहदा किया है और इन प्रोजेक्टों के तामीराती कामों का अनकरीब आगाज किया जाएगा। आइंदा चंद महीनों में वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों का काफी मसरूफ शेड्यूल है। तवक्का है कि नरेंद्र मोदी नवंबर में म्यांमार में मुनक्किद होने वाली आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करेंगे। नवंबर के महीने में ही ऑस्ट्रेलिया में G20 इजलास मुकर्रर है और इसी महीने नेपाल में सार्क चोटी इजलास भी मुनक्किद होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मरकजी हुकूमत ने कमजोर मानसून की पेशगोई के बाद इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। जुमे के रोज वजीर आजम ने कमजोर मानसून से मुकाबला करने के लिए एक आला सतह की मीटिंग ली, जिसमें वजारत ज़राअत ने सूखे से निपटने के लिए 500 जिलों के लिए एक जामे मनसूबा पेश किया। 93% महकमे मौसमियात ने जून से सितंबर तक 93% मानसून की पेशगोई की है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत अलर्ट हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर इस ज़मन में वजारत ज़राअत, ग़िज़ा, खाद और वाटर रिसोर्सेस के वज़रा और इन वजारतों के सेक्रेटरियों के साथ एक अहम मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी एक बयान में मीटिंग से मुताल्लिक जानकारी देते हुए कहा गया कि मीटिंग में मुस्तक़बिल में मुल्क के 500 जिलों में कमजोर मानसून से निपटने के लिए वजारत ज़राअत ने एक जामे मनसूबा पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए मीटिंग से मुताल्लिक जानकारी दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि मीटिंग में ज़राअत, देही मईशत, ऑर्गेनिक खेती के अलावा ज़राअत से जुड़े दीगर मौज़ूआत पर मुतल्लिक़ा वजारतों और आला अहदेदारों के साथ नफा बख्श बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा कि मीटिंग में ज़राई तरक्की और किसानों की तरक्की से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस आला सतह की मीटिंग में काबीनी वज़रा अनंत कुमार, उमा भारती, रामविलास पासवान और राधा मोहन सिंह शरीक हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर दिफा अरुण जेटली आज से जम्मू कश्मीर का दो रोज़ा दौरा करने वाले हैं। जेटली अब से कुछ देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। जेटली हवाई अड्डे से सीधे फौज के हेडक्वार्टर जाएंगे और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम से मुलाकात कर रियासत की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। बताया जाता है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जेटली को जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी सूरत हाल से भी वाकिफ कराएंगे। वजारत दिफा की जिम्मेदारी संभालने के बाद जेटली का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर है। जराये के मुताबिक जेटली के दौरे के दौरान कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी के लाहेमल पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। जेटली रियासती गवर्नर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं।
بالی ووڈ کی معروف اداکارہ و IPL فرنچائزی کنگز 11 پنجاب کی مالک پریتی زنٹا نے اپنے سابق بوائے فرینڈ و معروف صنعتکار نیس واڈیا کے خلاف چھیڑخانی کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ پریتی نے مرین ڈرائیو پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت دی، جس کے بعد نیس واڈیا کے خلاف FIR درج کی گئی۔ پولیس نے نیس واڈیا پر آئین کی دفعہ 354، 504، 506 اور 509 کے تحت معاملہ درج کیا ہے۔ پریتی زنٹا کے مطابق 30 مئی کو کنگز 11 پنجاب اور چنئی سپر کنگز کے مقابلے کے دوران وانکھیڑے اسٹیڈیم میں نیس واڈیا نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے لیے نازب الفاظ کا استعمال کیا اور انہیں دھمکی دی۔ واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبل پریتی اور نیس واڈیا نے اپنے 5 سالہ تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔ چنئی ورسز کنگز 11 پنجاب میں میچ تھی۔ کنگز 11 پنجاب کا جو ہے وہ پریتی زنٹا باس ہے ان کی۔ اس وقت پریتی زنٹا اور نیس واڈیا ایک ہی ساتھ بیٹھے تھے، تو بدتمیزی پیش آیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ڈھکل دیا اور کچھ گندی بات کہی۔ تو انہوں نے کل 12 تاریخ کو آ کے پولیس اسٹیشن میں ایک کمپلین لیٹر دیا اس کے خلاف، نیس واڈیا کے خلاف۔ تو اس کے تحت آج ہم لوگوں نے کیس داخل کیا 13 تاریخ کو۔ مورٹ اسٹیشن 354، 504، 506 IP3 کے تحت ہم لوگوں نے کیس درج کیا ہے۔ آگے انویسٹیگیشن چالو ہے۔ بیسیکلی وہ لوگ ایک تو کو پارٹنر ہیں پنجاب اس کے 11 کے، دوسرا کیا ہے کہ بہت ٹائم تک ہی ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 2009 میں ان کا بریک اپ ہوا۔ میں سوچتی ہوں ویسے تو کسی پروش کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ مہیلا کو چھوئے یا اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ نہیں کر سکتا، پروش کر سکتا ہے، اور اگر انہوں نے رپورٹ درج کرائی ہے تو کسی آدھار پہ کرائی ہے، کوئی آدھار ہین رپورٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ لگے گا، کیونکہ پولیس بھی اب انویسٹیگیشنز کرے گی، کیونکہ تھانے میں FIR درج ہوئی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ سچ سامنے آنے دیجیے۔ کیا ایک جانب جہاں ملک میں مہنگائی اپنے قدم مضبوط کر رہی ہے، ایسے میں مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے واضح کیا ہے کہ فی الحال LPG سلنڈر، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جو در پہ مل رہا ہے اسی در پہ ملے گا۔ جو گیس سلنڈر کی جس در پہ مل رہا تھا، جتنے مل رہا تھا اتنا ہی ملے گا۔ گیس، ڈیزل، پیٹرول کی جو در ابھی بازار میں ہے وہی رہے گا، ابھی وہی رہے گا۔ مظفر نگر فسادات متاثرین کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ فرقہ پرستی کی مار جھیلنے کے بعد متاثرین کو اب ضلع انتظامیہ کے عتاب و قہر کا سامنا ہے۔ شاملی ضلع انتظامیہ نے فساد متاثرین کو 3 دنوں کے اندر پناہ گزین کیمپوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ شاملی ضلع انتظامیہ کے مطابق پناہ گزین کیمپ سرکاری زمین پر قائم کیے گئے ہیں۔ 250 سے زائد خاندان گزشتہ ستمبر سے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں۔ ملک پورہ، نرپور، کرگان، اکبرپور، سینٹھی میں یہ پناہ گزین کیمپ قائم ہیں۔ شاملی کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ سریش کمار مشرا نے بتایا کہ کل سرکاری افسران کی ایک ٹیم نے ان مقامات کا دورہ کر کے پناہ گزینوں کو جگہ خالی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ملک بھر میں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ شب برات منائی گئی۔ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں شب برات کی رونق دیکھی گئی۔ فرزندان توحید رات بھر اپنے معبود کے سامنے سجدہ ریز رہے اور قبرستانوں میں فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر پولیس انتظامیہ نے حفاظت کے سخت بندوبست کیے تھے۔ مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر پولیس اہلکاروں کو نظم و نسق میں مدد بھی کی۔ علماء اور مساجد کے ائمہ نے شب برات کو سنجیدگی سے منانے کی مسلم نوجوانوں سے اپیل کی تھی۔ انہوں نے تاکہ اس سے ہر چیک پوسٹ پہ 4-4، 5-5 لوگ بٹھا رکھے ہیں مسلم، تو کوئی لڑکے ایسی بات نہ ہو اور کوئی ایسی بات ہو نہیں رہی ہے۔ نہیں، آج کے دن میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑا ریش ڈرائیونگ کا ہوتا ہے۔ مطلب ان کو ہم سمجھاتے ہیں، اگر یعنی ان کے پیپر چیک کرتے ہیں
और बारिश गिर रही, पानी है रास्ते पे, तो बाइक स्किड हो सकती है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, लोग भी मानते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कल सुबह इंतखाबात के नतायज को पार्टी के लिए एक चैलेंज करार दिया। जुमे के रोज अपनी पार्लिमानी सीट रायबरेली के दौरे पर आई सोनिया गांधी ने पार्टी कारकुनों को शिकस्त से हौसला पस्त करने के बजाय अवामी मसाइल को मजबूती से उठाने की हिदायत दी। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि वो पार्टी के वकार को दोबारा हासिल करने के लिए सबसे आगे रहेंगी। हमारी पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है, लेकिन ये परिस्थितियां स्थायी नहीं। हमें निराश होने की नहीं, बल्कि अपने को आगे की लड़ाई के लिए तैयार करने की जरूरत। यह रास्ता कहीं भी कठिन हो, लेकिन पक्के इरादे के साथ इस पर चलकर हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस रास्ते पर मैं अब सबके साथ सबसे आगे चलूंगी और पीछे नहीं हटूंगी। मुंबई के कैंपकोला सोसाइटी के मकीनों के लिए एक राहत की खबर है। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस ज़िम्मन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से राय लेने का इशारा दिया है। रियासती काबीना की मीटिंग में वज़ीर अक़लियती उमूर आरिफ नसीम खान ने हुकूमत से सोसाइटी के मकीनों की मदद के लिए इंसानी बुनियाद पर आगे आने का मुतालबा किया, जिसकी PWD वज़ीर छगन भुजबल और वजारत इम्कना के ममलकती वज़ीर सचिन अहिर ने हिमायत की। जिसके बाद वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने इस ज़िम्मन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से राय तलब करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेर सुप्रीम कोर्ट ने BMC के हक में फैसला सुनाते हुए कैंपकोला सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था और सोसाइटी के मकीनों को फ्लैट्स खाली करने की हिदायत दी थी, जिसकी मियाद भी जुमेरात को खत्म हो चुकी है। अरबी फारसी की दोबारा सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में शमूलियत की उम्मीद एक बार फिर से नजर आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले मुस्लिम ताजिर जफर सरिशवाला ने यकीन दिलाया कि मोदी सरकार अरबी फारसी की सिविल सर्विस इम्तिहानात में शमूलियत के हक में है। जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में मुस्लिम यूथ ऑफ इंडिया की जानिब से जफर सरेशवाला के साथ तबादला ख्याल पर मबनी प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी से लेकर तालीम और तरक्की के मौज़ूआत उठाए। इस दौरान जफर सरेशवाला के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत के तई अक़लियतों में मौजूद तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर जफर सरेशवाला ने यकीन दहानी कराई कि मोदी हुकूमत अक़लियतों को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि अरबी फारसी के सिविल सर्विसेज से अखराज को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नापसंद करते हैं। वो तो बिल्कुल, वो तो मोदी साहब ने खुद कहा, यही आपका ग्रुप मिला था मोदी साहब को, तो मोदी साहब हैरान हो गए, बोलते थे कि कमाल है, हिंदुस्तान का 58% ट्रेड उन मुल्कों के साथ होता है जहां पर अरबी और फारसी बोली जाती है, तो हमें तो ऐसे अफसरों की जरूरत है कि जो फारसी और अरबी जानते हों, और ये हुकूमत कैसी बेवकूफ़ी का काम करती है। और मोदी साहब को फिर से हम अप्रोच करेंगे इस मामले में। सरेशवाला के सामने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी, रिजर्वेशन से लेकर दफा 341 के मौजूदात भी ज़ेर बहस आए। मुसलमानों के वोटों के मौजूदा इलेक्शन में गैर मौसर होने का मुद्दा भी उठा। मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए सबसे जरूरी हम लोगों की राय ये है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके खिलाफ भेदभाव ना हो, और उनका जो हक बनता है कानूनी तौर पे वो मिले, उसकी कोशिश की जाएगी। जैसे अभी सोशल सेक्टर में जो खर्चा हो रहा 3 लाख करोड़ का, उसमें मनरेगा है, इंदिरा आवास है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, उसमें उनको बिना किसी भेदभाव के उनका हिस्सा मिले। मुसलमानों के जो मोदी ने कहा, मोदी साहब ने कहा कि मुसलमानों का प्रॉब्लम ये हुआ इस मुल्क में कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, अवसर, यानी मोदी ने ये कहा कि मुसलमान को अवसर ही नहीं मिला, तो बोले मैं कोशिश करूंगा कि मुसलमान को अपॉर्चुनिटी मिले टू परफॉर्म, टू एक्सेल। दूसरा, आई विल सी टू इट कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। मैं समझता हूं अगर यही 2 चीज हो जाए तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मरकजी मुलाजिमतों के लिए होने वाले सिविल सर्विसेज इम्तिहान में मुसलमानों की कामयाबी का तनासुब 30 से 35 उम्मीदवारों की सूरत में 3 से 3.5% ही महदूद होकर रह गया है। इस साल अरबी फारसी के अखराज से यह खदशा जोर पकड़ रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब मजीद कम होगा, क्योंकि अरबी फारसी के मज़ामीन लेने वाले उम्मीदवार उमूमन मुसलमान हुआ करते हैं। ऐसी सूरत में जफर सरेशवाला की यकीन दहानी उम्मीद की किरण बन गई है। ETV न्यूज, नई दिल्ली।
खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इराक में फौज रवाना करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ताहम ओबामा ने कहा कि अमरीका इराकी तशद्दुद से निपटने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल पर गौर कर रहा है। इराक में अलकायदा से मुतासर सुन्नी इंतहा पसंद ग्रुप इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और ISIL ने मुल्क के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। इंतहा पसंद अब दारुल-हुकूमत बगदाद की जानिब पेश कदमी का मंसूबा बना रहे हैं। इंतहा पसंदों के नापाक अज़ाइम को कुचलने के लिए और इराकी अफवाज की मदद के लिए अमरीकी ताउन की तवक्को की जा रही थी। ताहम अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वाज़ेह कर दिया कि इराक में जमीनी फौज रवाना नहीं की जाएगी। ताहम अमरीकी सदर ने कहा कि वो इंतहा पसंदों के इस खतरे से निपटने के लिए दीगर मुतबादिल पर गौर कर रहे हैं। ओबामा ने तफसीलात में गए बगैर कहा कि इस बहरान से निपटने के लिए कलील मुद्दती और फौरी तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही ओबामा ने कहा कि इराकी हुकूमत को ही इस बहरान से निपटना होगा और वहां मसलकी तशद्दुद को कम करने की कोशिश करना होगा। अमरीकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस को अमरीकी इमदाद उसी वक्त मुहैया की जा सकती है जब इराक के लीडर मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर मुल्क में इस्तेहकाम और अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हो। ओबामा ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में अमेरिका की किसी किस्म की इमदाद मौसर साबित नहीं हो सकती। ओबामा ने मजीद कहा कि इराकी लीडरों को मुल्क के अवाम की खातिर और मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए सख्त फैसले और समझौते करने होंगे और ऐसी सूरत में इन्हें अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की हिमायत मिल सकती है। अमरीकी सदर ने कहा कि इंतहा पसंद तंजीम ISIL इराक के लिए खतरा है और चूंकि तंजीम का नजरिया तशद्दुद पर मबनी है इसलिए ये तंजीम अमरीकी मफादात के लिए भी खतरा बन सकती है। ओबामा ने कहा कि लोग ये तवक्को न रखें कि रातों रात कोई फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारीक बीनी से सूरत हाल के जायजे के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा और मौसर कार्रवाई की जाएगी। बराक ओबामा ने कहा कि इराक के पड़ोसी ममालिक को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। ओबामा ने मजीद कहा कि इराक में इंतहा पसंदों का कदम जमाना किसी के मफाद में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। जंग से जूझ रहे अफगानिस्तान की अवाम आज 3 महीनों के अंदर दूसरी मरतबा सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इंतखाबात के पेश नजर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। सदारती इंतखाबात की मुखालफत कर रहे तालिबान ने अफगान अवाम को इंतखाबात से दूर रहने की धमकी दी है। सदारती इंतखाबात में साबिक वज़ीर खारजा अब्दुल्ला अब्दुल्ला और आलमी बैंक के साबिक अहदेदार अशरफ गनी के बीच सीधा मुकाबला है। वाज़ेह है अप्रैल में हुए पहले मरहले के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया था। पहले दौर के इंतखाबात में अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 45% जबकि अशरफ गनी को 31.6% वोट हासिल हुए थे। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने इंतखाबात के दौरान फौज को गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने की हिदायत दी है। और अब बात फीफा आलमी कप 2014 की। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों में जुमे के रोज 3 मुकाबले मुनक्किद हुए। ग्रुप ए के मुकाबले में मैक्सिको ने जीत दर्ज कराई तो वहीं ग्रुप बी के 2 मुकाबलों में नीदरलैंड ने स्पेन को शिकस्त दी। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के सल्वाडोर में खेले गए तारीखी मुकाबले में नीदरलैंड ने दिफाई चैंपियन स्पेन को 5-1 से करारी शिकस्त देकर 2010 के फाइनल मुकाबले का बदला ले लिया। नीदरलैंड मुकाबले के शुरू ही से स्पेन पर हावी रही। ताहम पहला गोल स्पेन ने किया लेकिन कुछ ही देर में नीदरलैंड ने भी गोल कर दिया। इसके बाद जैसे नीदरलैंड ने स्पेन के खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए।
نیدرلینڈ نے ایک کے بعد ایک لگاتار 4 گول مار کر ورلڈ کپ میں جیت سے شروعات کی۔ پیرسی روبن وین اور ایڈجن رابن نے 2-2 گول کیے۔ اس موقع پر فٹ بال فینس میں اپنی اپنی پسندیدہ ٹیموں کی جیت کو لے کر خوشی ہے، تو وہیں ہارنے والی ٹیموں کے فینس مایوس ضرور ہیں، لیکن پر امید ہیں کہ ان کی ٹیمیں آئندہ مقابلوں میں اچھا مظاہرہ پیش کریں گے۔ It was great. I didn't expect 1-5. I love it. I hope we're up 1-1, maybe 1-2, but 1-5 was amazing. I love it. Pues cambiar prácticamente todo. Prácticamente todo. Hay que cambiar la defensa, hay que cambiar un poco pues las ganas, la motivación, quitarse como dicen en Brasil, el salto alto, quitárselo, bajarse del autobús y jugar al fútbol. گروپ بی کے کوئبا میں کھیلے گئے ایک اور دلچسپ مقابلے میں چلی نے آسٹریلیا کو 3-1 سے شکست دی۔ وہیں نٹل میں کھیلے گئے گروپ اے کے مقابلے میں میکسیکو نے کیمرون کو 1-0 سے شکست دیتے ہوئے جیت سے شروعات کی، اور پرالٹا کے واحد گول نے میکسیکو کو جیت کی خوشی دی، جبکہ آئندہ میچوں میں نیدرلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ دوسری جانب اسپین کا مقابلہ چلی سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ مقابلوں میں آج 4 مقابلے منعقد ہوں گے۔ گروپ سی کے مقابلوں میں کولمبیا اور گریس کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور جاپان کا مقابلہ آئیوری کوسٹ کے درمیان ہوگا۔ گروپ ڈی کے مقابلوں میں یوروگوے کا مقابلہ کوسٹاریکا سے اور انگلینڈ کا مقابلہ اٹلی سے ہوگا۔ تاہم انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان مقابلہ سخت اور دلچسپ ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔